gold plated. آج جو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں آپ کے لیے موبائل کا جو 2 مہینے والا معاملہ تھا اس کو 4 تک ایکسٹینڈ کیا ہے اور ہماری یہ پوری حتمی کوشش ہوئے گی اور اس پہ قمر رضا صاحب نے اور ہماری منسٹری نے اور سالک صاحب تشریف لا رہے ہیں. وی ہیو بین نیگوشیٹنگ ود FBR کہ اس کا جو فورگون ریونیوز ہیں وی ٹرائی ٹو سی کہ ہم یہ اس کو ویو آف کریں اور کم از کم ایک بندہ ایک پاسپورٹ پہ 1 سال میں 1 موبائل لے کے آ سکے. دس از ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں, منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز, منسٹر فار ریلیجیس افیئرز, ان کو ہم تہہ دل سے ویلکم کر رہے ہیں اور اس گیدرنگ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشچم پاکستان اور صاحب جتنے بھی اندر اوورسیز سب کو میرا السلام علیکم. آج کی بڑی خوشی ہوئی, وزیر اعظم صاحب نے آپ لوگوں کو بلایا اور کئی ایسی چیزیں تھیں کہ ان کی توجہ بھی دلائی اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ کو نتیجہ اور رزلٹ آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گا اور میں خود بھی میک شیور کروں گا کہ جو بھی چیز آپ سے کمٹ کی جائے وہ آنر کی جائے اور اس کا فالو اپ میں خود کروں گا. اس چیز کا آپ دھیان رکھیے گا. اوورسیز کورٹس بھی بنے. کل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ان سے میری بات ہوئی تو ان سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فرائیڈے کا ٹائم میں نے کیا ہے تاکہ ہم بیٹھ کے جو اوورسیز پاکستانیز کے کورٹ ہمیں پارلیمنٹ سے سینٹ سے اپروو کرائے تھے تاکہ ان کا عملی طور پہ وہ فعال ہو جائے. اس کے لیے منسٹر آف لا اینڈ جسٹس نے بیٹھ کے اس کے اوپر پلاننگ کرنی. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کے جانے کے بعد فائنانس منسٹر صاحب کو میں نے یہ کہا, میں نے کہا جتنی معمولی سی بات ہے ٹیلی فون والی کہ اس کے اوپر آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 2 سے 4 مہینے چل رہے ہیں تو میں نے کہا جتنا آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کے مزید اور بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان میں میں نے یہ فیل کیا کہ بہت اچھی قیادت مل گئی ہے اور ان کو فکر بھی بہت ہے. جو پلانز ہم نے ڈسکس کیے وہ بھی بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور جو یہ سوچ رہے ہیں وہ ایک ہی ہے. اس لیے کام میں تیزی بھی آئے گی اور جتنے یہاں پہ مسائل ہیں اسپیشلی جو سوسائٹیز یہاں پہ بنی ہوئی اوورسیز کے لیے اس کو سیدھا کرنا بہت ضروری ہے. باقی ہیلتھ کنسرنز ہیں, ایجوکیشن کے معاملات ہیں, کیونکہ آپ لوگ تو سب ماشاء اللہ ویل ٹو ہیں لیکن کئی ہمارے اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں کہ جن کو یہاں پہ ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. پیچھے جو ان کے گھر والے ہیں, فیملیز ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ سب سے ملاقات بھی رہے گی اور میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب کو یہی کہا, سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انگیجمنٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. مختلف ممالک میں جانا چاہیے, آپ لوگوں سے بیٹھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. عموماً لوگ بات نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ جی کسی اور سیاسی جماعت کا یہ حصہ ہے تو ہم وہ انگیج ہی نہ کریں. ایسی بات ہے ہی نہیں. اور خصوصاً میرے والد صاحب نے آج سے کئی سال پہلے مجھے یہ ترکیب کی کہ پاکستان سے باہر کبھی نہ دیکھنا کہ کون کس سیاسی جماعت کا حصہ ہے. سب پاکستانی ہیں جس کا بھی, اور کوئی بری بات نہیں ہے. ہر کسی کی ایک چوائس ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اگر وہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت سے وابستگی رکھے تو ہم اس سے اپنا تعلق ختم کر لیں. بالکل ایسی بات نہیں, بلکہ ہمیں ان کو اور قریب لے کے آئیں. اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ وہاں ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. صرف تنقید برائے تنقید کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو. تو مجھے آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید بھی کرتا ہوں اور چاہوں گا بھی کہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اب میں گزارش کروں گا صدر پاکستان جناب سید یوسف مرزا گیلانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خیالات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر فار اوورسیز پاکستانی, منسٹر فار ریلیجیس افیئرز قاضی سالک حسین صاحب اور میرے بھائی سید قمر رضا صاحب, یہاں گلوبل اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ظہیر احمد محاذ صاحب, سیکرٹری اوورسیز ڈاکٹر ارشد محمود صاحب,
जनरल सरफराज साहब SIFC और मेरे मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाई जो तमाम ओवरसीज़ से आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और बेहतर हुआ है कि जो वहाँ से चीज़ दिखती है वो यहाँ से दिखती है। जब आप वहाँ होते हैं आपको चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं और जब यहाँ होंगे आप रियलिटी के ज़्यादा करीब होंगे क्योंकि वहाँ people earn in dollars, spend in rupees. Here we earn in rupees and spend in dollars. इससे बड़ा मुश्किल काम है। तो ये मुश्किल काम जब आप यहाँ होंगे तो आपको भी मुश्किल लगेगा। मुझे याद है जब मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान था, उस वक्त ग्लोबल रिसेशन था और पूरी दुनिया कसाद बाजारी से मुतासर थी और हम भी मुतासर थे, पूरी दुनिया थी। और उस वक्त मैंने अपनी इकॉनमी जो थी उसको डाइवर्ट कर दिया टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर की तरफ मैंने डाइवर्ट किया तो डिस्पाइट 2 फ्लड्स एंड मेहनत से ये वहाँ आपने अपनी जगह बनाई। कोई ऐसी मामूली बात नहीं है कि आप एक फ्लाइट से जाएं और जाकर प्रॉस्पर हो जाएं, डिफ़िकल्ट है। मैंने वो भी लोग देखे जो इस वक्त मल्टी बिलियनर है मगर वो डिश वॉशिंग करते थे और उन्हें बड़ी मेहनत से इस मकाम पे पहुँचे। अब थर्ड जनरेशन से भी लोग वहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं और दे आर एजुकेटेड। और जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, उन्होंने उस मुल्कों के इकॉनमी में भी बड़ा असर अंदाज किया और उन्होंने बड़ा काम किया। और मैं ये समझता हूँ हमारा ये भी काम है कि जो रिलीजन है इस्लाम, वो दर्स देता है पीस का, वो दर्स देता है मोहब्बत का, वो दर्स देता है शफकत का, वो दर्स देता है अखुवत का। मगर हमारे जो हमारा चेहरा है इस्लाम को उसको मस्क किया जाता है और वो इम्प्रेशन ये देते हैं वी आर टेररिस्ट। तो इसलिए आपको बतौर सफ़ीर के वो डिस्पेल करना चाहिए कि वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स और जो हमारा मज़हब है हमें दर्स देता है अमन का। वेयर एवर आई गो दैट इज़ माई मोटो इन माई लाइफ। हम पीस के लिए काम करते हैं ताकि अमन के लिए, अगर अमन होगा तो तरक्की होगी, अगर अमन होगा तो आपको मिलेगी। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त एक भी सियासी कैदी पूरे मुल्क में नहीं था और जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम था वो आई वाज द ओनली यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और जितने भी अपने आईन पाकिस्तान जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया 73 के आइन में, और आप सब में से चंद लोग होंगे शायद किसी को पता हो कि वो आइन पाकिस्तान 73 आइन, जिसको मुत्तफ़िक़ा आइन कहते थे, यूनानिमस आइन कहते थे, उस तक 128 वोटों से बना। क्यों 128 वोटों से बना? आधे लोग मशरक़ी पाकिस्तान में थे, आधे मगरबी पाकिस्तान में। वो बांग्लादेश बन गया और यहाँ जो हुआ तो वो 128 वोटों के साथ यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। उस वक्त यूनिकैमरल सिस्टम था, एक ऐवान था कौमी असेंबली, सेनेट नहीं थी। सेनेट जो बने हुए 50 साल हो और वो उस आइन में दारिश था कि उसको बनाया जाए। तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की असल आइन को बहाल किया 128 वोटों से नहीं, 446 वोटों से। और क्योंकि उस वक्त बाई कैमरल सिस्टम था, सेनेट भी थी, कौमी असेंबली में थी, और हमने बहाल किया। एंड आउट ऑफ 446 नन अपोज्ड, एक ने भी मुखालफत नहीं की, नून लीग। और हमें ताना देते थे कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नून लीग, और नून लीग को ताना देते यू आर अ फ्रेंडली अपोजिशन। तो मुल्क के लिए ये करना पड़ता है, मुल्क के कौम के लिए ये करना पड़ता है। और आपके लिए एक मुझे याद आ, वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड आप जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेजते हैं, वी आर सो ग्रेटफुल कि आपने पाकिस्तान के लिए एक प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें भी चाहिए कि वी शुड फैसिलिटेट। यहाँ पाकिस्तानी जो वहाँ आबाद हैं वो मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं,
कमा कर यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, पता चलता है कब्जा ग्रुप आ गया और वो उनकी जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। तो इसलिए हमने लेजिस्लेशन की है सेनेट में, ताकि उसमें जो आपके अपने कोर्ट्स बनाए जाएँ ओवरसीज़ के और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपके फैसले किए। मुझे खुशी है कि ओवरसीज़ के लिए जो पिलग्रिम्स हैं, जो सिख कम्युनिटी है, वो यहाँ अगर आना चाहते हैं उनको ऑनलाइन वीज़ा मिलेगा और ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, उनको फैसिलिटेट किया। और इसी तरीके के साथ जो आपके लीगल मैटर्स हैं उस पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन हो। अब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने वहाँ आपने मेहनत की है, अब यू वांट टू इन्वेस्ट, यहाँ जनरल सरफराज साहब बैठे हैं, SIFC के हेड है, अंडर वन विंडो, अंडर वन प्लेस, दे फैसिलिटेट यू कि आपने जो भी कारोबार आपने करना है आपको एक ही जगह से फैसिलिटी मुयसर होगी। उनमें गालिबन एक IT का है प्रोफेशन, एक एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर है, और इन एरियाज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दे विल फैसिलिटेट। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो डिप्लोमेसी है वो डिप्लोमेसी एक ही है। अगर आप सफ़ीर बनते हैं और वहाँ जाकर आप काम करते हैं तो आज की डिप्लोमेसी इज एक अलग है। अगर आप डिप्लोमेट हैं और आप उनको फैसिलिटीज़ दें कि किन किन एरियाज में आप काम कर सकते हैं। ट्रेड इज़ नाउ डिप्लोमेसी। मैं अभी गया हूँ, बयाना गया हूँ, डबलिन गया हूँ, उसके पहले मैं गया था सऊदी अरेबिया, उससे पहले UK। तो वहाँ जो भी बात करता है वो ट्रेड की बात है, वो कारोबार की बात करता है, वो डिप्लोमेसी जो है वो यही है। तो इसलिए इसको हमें फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए, पाकिस्तान की इमेज को बेहतर बनाना चाहिए। जो डेमोक्रेसी है वो एक ही चीज़ है, व्हेन यू एग्री टू डिसएग्री इट्स डेमोक्रेसी। अख्तलाफ राय जमहूरियत। तो इसलिए उनके वाले साहब सही कहते थे, जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं आप फिर पाकिस्तान के सभी हैं, आप पार्टी मुल्क के आगे फिर बना दें, मगर वहाँ आप सिर्फ रियासत की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। आपको कोई पार्टी पसंद है नहीं पसंद वो आपका ज़ाती मामला है, मगर मुल्क का मामला नहीं है। तो इसलिए मुल्क के लिए यूनाइटेड और यूनिटी दिखानी चाहिए। अब वहाँ ओवरसीज़ में हम जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ आरा है, मगर सैयद कमर अल्लाह से पूछें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर देने जाता हूँ और मुझे सब सुनते हैं। अगर मैं किसी और हाउस ऑफ कॉमन्स में जाता हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता हूँ, अमेरिका में मैं जाता हूँ, पीपल लिसन टू मी। तो इसलिए कि वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, और अगर हम फुटपाथ पे बच्चों के साथ बैठ के खाना भी खा रहे होंगे तो टैक्सी ड्राइवर रोक कर फ़ोटो खिंचवा के चलेगा। तो दैट शोज़ के यू शुड मेक ट्राई दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट, यू शुड इम्प्रूव योर इमेज एज वेल सो दैट यू शुड बी रिस्पेक्टेड। तो इन अल्फाज के साथ मुझे एक अभी खबर दी, इन्होंने मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ शोहदा के लिए आपने होमलैंड हीरोज़ का नाम दिया है, और उनमें आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा का पोर्ट्रेट भी बनाया। शी ऑल्सो गेव लाइफ फॉर योर फ्रीडम। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।